हमजा अली सिद्दीकी, हमजा अली सिद्दीकी, इंसिया बतूल, मूसा खुशनूद, प्रेजेंट। मरियम तारिक, प्रेजेंट। मुहद्दिसा फातिमा, नाइमा असगर, नाइमा असगर, इसके बाद है मुर्तज़ा हैदर, इर्तज़ा हुसैन रिजवी, जवाद हुसैन तकवी, जॉन अली जाफरी, प्रेजेंट। मालिक अख्तर, मोहम्मद अली अकबर। प्रेजेंट सर। अली अकबर आप प्रेजेंट। लास्ट 2 क्लासेस से एब्सेंट थे, क्यों? सर वो आपका जो है मेरा साइन इन नहीं हो पा रहा था जूम पे। इरफान नदीम, इरफान नदीम, महक फातिमा, प्रेजेंट सर। राया बतूल, सारा फातिमा, सारा फातिमा, नाइमा असगर एंड तलाल अहमद खान। नाइमा असगर, ओके, सैयदा सारा फातिमा, अच्छा, उनसिया जहरा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम तलाल, तलाल अहमद, प्रेजेंट। वानिया कलीम, प्रेजेंट सर। okay class, what we did yesterday, सर हमने क्या कहते हैं मदरबोर्ड और सीपीयू के बारे में, सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ा था, उसके Okay. इंटरनल पार्ट्स। सर्विस स्टडी अबाउट मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट एंड देयर पार्ट्स। इस लेक्चर्स की मैंने कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे या नहीं किए थे? क्लास सर हमने वीडियो बताई थी। वीडियो बताई थी या दिखाई थी? दिखाई थी सर। जी, पेरिफेरल पोर्ट्स हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने सीपीयू चिप्स को डिस्कस किया। देन वी डिस्कस द रैम स्लॉट्स एज वेल। okay, till here I think we have done that. Okay, or did we discuss the USB controller as well? ये किया था हमने डिस्कस कल? यस। Okay, now what is USB controller? What is USB and इसकी USB की full form किसी को पता है? Does anyone know the full abbreviation of the USB? सर एक यूनिवर्सल सीरियल बस। Good, right. So you can see that. Can you see the screen? नो सर। Now? यस सर। नहीं। नो सर। यस। नहीं सर, बंद खोल। यस सर। नहीं आ रही है सर अब सही। Okay. Now, what is the difference between this blue port USB and the black port USB? Who will tell me? Yes, Ali Akbar, tell me. व्हाट सर? Tell me the difference between the blue port USB and the black port USB. सर डोंट नो सर।
Don't know. Who will tell me? Who will tell me? Vania, Mehak, anyone? Yes, Talal. Tell me about the difference between the blue port USB and the black port USB. Talal, can you hear me? तलाल आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, I will tell you about the difference between the blue port USB and the black port USB. The blue port USB basically is a 3.0. Okay, the version of it is an advanced version of the USB, so that's why it is different from the black port. The black USB port basically it's an older technology which is called as USB 2.0. Okay, now why we say 2.0 and 3.0? Because only the difference between the USB 3 and the USB 2 is the data rate. Okay, so data rate जो है, what is the data rate? Means that how fast you can save your data or travel the data from the hard disk to the USB. So basically कितनी तेजी से आप डेटा जो है वो कॉपी कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं अपनी USB में, ये कहलाता है, इसकी स्पीड जो है वो दो डिफरेंट स्पीड है. Okay, so these are the difference between the USB ports, two USB ports. Okay, तो आप जब भी कोई सिस्टम बाय करें तो आई रियली रिकमेंड, जब भी आप अपने कंप्यूटर में देखें तो अपने जाके जरूर पूछिएगा लैपटॉप्स में कि इसमें USB 3 पोर्ट्स होनी चाहिए. तो आजकल जितने भी आप if you buy any of the laptops or your desktop, you will definitely find USB 3 ports, at least 2 USB 3 ports in your systems. Okay, so basically it is very useful. Okay, if you want to play the games, if you want to transfer the data, if you want to connect to the TV as well, so the data rate is very fast, so it is very good to use. Now moving forward, this is an IDE controller. IDE basically it is a circuit which allows, it's an electronic circuit which allows the CPU to communicate with a disk driver. Now what is the IDE? IDE basically जो है वो एक disk driver है जो कि आपके CPU को communicate करवाने के लिए use करता है. CPU का काम है, it takes the information process from the system like hard drive, RAM, cache memory, and it basically process all those information through the CPU. But how the information can be controlled? Let me check. Irfa and Talal again. Now how the information can be controlled? Okay, so there are lots of millions of information is traveling into the system. So the information is being controlled through IDE. Okay, so ये जो IDE है is basically it's a controller. Okay, it's just like a traffic cop. अगर traffic cop नहीं होगा तो हर जगह से जो ट्रैफिक आ रही है वो आपस में कोलाइड कर जाएगी और इट इज़ वेरी गेट्स वेरी मेस्ड अप. तो ये चीज़ें जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए कि हर डिवाइस अपने टाइम पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करे. दैट्स व्हाई वी यूज़ IDE कंट्रोलर. Now, as you can see the CMOS battery, how many of you open the PC and have seen this CMOS battery? सिल्वर कलर का एक सेल होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर. किस ने देखा है? Yes, tell me. किसी ने देखा है? अगर आप अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे बेसिकली तो उसके अंदर जो है वो एक साइड के ऊपर मदरबोर्ड में एक साइड पे एक CMOS सेल होता है. वो CMOS सेल बेसिकली होता क्या है? इट प्रोवाइड्स अ पावर. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ पावर टू द CMOS चिप. नाउ CMOS चिप बेसिकली क्या होती है? इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन. नाउ सिस्टम जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने पे आपको पता चलता है कि इस कंप्यूटर की आप देखते हैं क्लॉक भी सही चल रही है. ठीक है, जो आपकी क्लॉक आती है साइड में
वो बिल्कुल ठीक चल रही होती है। फिर आपके कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव की इंफॉर्मेशन है, रैम की इंफॉर्मेशन है, चिप्स की इंफॉर्मेशन है, तो ईच एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, सो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे सेव होती है, CMOS चिप के ऊपर होती है ना। CMOS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नाउ दिस इज बेसिकली मेटल ऑक्साइड जो है वो एक चिप है जिसके अंदर जो कंपनी कंप्यूटर बनाती है, फॉर एग्जांपल IBM, HP, डेल, सोनी, एप्पल, ये जो हार्डवेयर जो बनाती है, दे बेसिकली सेव द हार्डवेयर इंफॉर्मेशन इनटू दिस चिप। सो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यू कैन द कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड, जिसमें आपको पता चलता है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, इसमें रैम कितनी है, okay, now what is the size of the cache memory, so these are the, and what is the time unit is there, so actually these are the information that is already being saved into the computer, okay। so ये जो इस चिप को कंटिन्यूस पावर चाहिए होती है, ओके इस चिप बगैर पावर के ये चिप क्या करती है, ये वीक हो जाती है और बेसिकली इट लूजेस द इंफॉर्मेशन, और इसको जब इंफॉर्मेशन जब ये लूज कर देती है चिप, तो आपका कंप्यूटर खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर वो इट डज नॉट परफॉर्म वेरी एफिशिएंटली। सो दिस सेल प्रोवाइड्स द बैटरी, प्रोवाइड्स द पावर टू दैट चिप, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो ये CMOS बैटरी जो है इट प्रोवाइड्स द पावर टू दैट चिप, ठीक है। ये बैकअप के तौर पे यूज करते हैं, और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये चार्ज हो जाती है, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is a CPU slot? As you can see, there is a CPU slot over there. Yes, how many of you can see this? A CPU slot. Yes. Can you see this CPU slot? Yes, sir. तो Sir. अब ये जो अब आप ये देख रहे हैं ना, ये जो हुक्स हैं, ये हुक के अंदर जो है प्रोसेसर को इंसर्ट किया जाता है, इस हुक के अंदर प्रोसेसर को इंसर्ट किया जाता है। नाउ अब इस प्रोसेसर को देख, इस पूरे सर्किट को देखें, इस स्लॉट को देखें, और इसके पीछे देखें ब्लू कलर का पूरा एक बोर्ड बना हुआ है। कैन यू सी दैट? Yes. तो अब देखिए ये Yes, दो चीजें ना, एक हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक स्लॉट है जो CPU की है, और एक उसके पीछे एक बोर्ड है, ओके। नाउ दो चीजें हैं, कैन वर्क टुगेदर। दिस स्लॉट बेसिकली इज यूज्ड टू होल्ड द प्रोसेसर। आप क्या करते हैं, इस पूरे स्लॉट को ओपन करते हैं, यू पुट द प्रोसेसर चिप इन इट, और फिर इसको लॉक कर देते हैं, और फिर मैंने जैसे कल बताया था कि यू पुट द फैन ऑन इट, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, एंड हीट सिंकर on the processor, so that the whatever the heat the CPU generated, it will consume and exhausted by the fan, okay, on the top of it. So and similarly the अब ये जो blue color का chip board कहलाता है, it provides a mechanical and electronic connection between the microprocessor and printed circuit. ये basically जो circuit board कहलाता है, ये कहलाता है PCB. It is not Pakistan cricket board, it is the PCB, printed circuit board, ठीक है। ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर एक स्लॉट बनी होती है, उस स्लॉट के ऊपर जो है वो आप क्या करते हैं, एक अपना प्रोसेसर लगाते हैं, फिर उस प्रोसेसर के ऊपर जो है वो हीट सिंक और फैन लगा देते हैं, सो दैट द वो एक पूरा कनेक्टिविटी बन जाती है आपके पूरे मदरबोर्ड के साथ। क्लियर हुई बात? क्लास, इज इट क्लियर? Yes. 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 Yes, sir. Good. Yes, sir. Now the power supply, ये we all know that कि ये power supply क्या होती है, it is basically at the back of the system, ये system के back पर होती है। आप अपने desktop PC को देखेंगे तो ये जो आपको round जो circles आपको नजर आ रहे हैं, या you can see easily, और ये जो power supply की जो cord होती है, you can easily see that, ये भी आपको नजर आएगी जहाँ पे wires लग रही होती है, ठीक है। आप
अपना अगर कंप्यूटर को ऑन करना है तो आपके कंप्यूटर में देखिए दो वायर्स, आपके सिस्टम में से दो वायर्स निकलती हैं, ठीक है, जिसको पावर चाहिए होती है। एक मॉनिटर की वायर होती है और एक कंप्यूटर की वायर होती है, ठीक है। जो सिस्टम यूनिट की वायर होती है वो यहाँ इस स्लॉट में लगती है और इस स्लॉट से निकल के वो जाती है सीधे प्लग के अंदर। जैसे ही प्लग में जाएगी वो वहां से उसको पावर सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। मगर अब ये देखिए कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर ये देखिए ये दो बटन्स मेंशन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एक बटन है पावर सप्लाई को ऑन करने का और ये ऑफ करने का। देखें, अगर एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊं, अगर आप किसी पावर सप्लाई को डेस्कटॉप पीसी के पीछे अगर आप ये देखें कि ये बटन लगा हुआ है, आप इसको ऑफ कर देंगे ना तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये पावर सप्लाई जो है ये इस बटन से ही आगे ऑन होती है। जस्ट लाइक दैट कि जो है कि मेरे घर में लाइट तो आ रही है मगर मैंने पंखे का बटन ऑफ कर दिया तो पंखा चलेगा क्या? क्या पंखा चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा, क्योंकि उस बटन से लाइट तो आ रही है मेरे घर में और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बटन तक भी आ रही है, मगर मैंने बटन ऑफ किया हुआ है सो दैट जो करंट है वो आगे पास ऑन नहीं हो रहा, फैन को पास ऑन नहीं हो रहा। तो सिमिलरली अगर मैं ये बटन ऑफ कर दूंगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कंप्यूटर में वो आगे पावर सप्लाई को पास ऑन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा और लोग कहेंगे यार ये पता नहीं क्यों खराब हो गया, कुछ हो गया। सो अगर समटाइम्स अगर होता ही है कि अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए या स्टार्ट ना हो रहा हो या कोई इशू आ रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पावर सप्लाई चेक करें तो पावर सप्लाई को ये जरूर चेक करें कि ये इसका बटन ऑफ या ऑन तो नहीं है, ठीक है। इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। शैल वी गो फॉरवर्ड? सर ये sir. क्या नाम है, ये सीपीयू के अंदर लगा होता है? नहीं, सीपीयू के अंदर नहीं लगा होता, ये मदरबोर्ड के का पार्ट होता है, ये अलग से अटैच होती है। सर ये लेकिन बहुत मोटा है ये। तो ये बिल्कुल, हाँ, तो ये सीपीयू जो है क्या कहते हैं, ये बाहर की तरफ जो है क्या कहते हैं, इसका ये जो हिस्सा है ये बॉक्स के अंदर होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका आउटसाइड है और ये जो बाकी पार्ट है ये अपर फैन देखें या इसके साइड है ये अंदर की तरफ होती है बॉक्स के अंदर। तो इस प्लेस्ड ऑन द बॉक्स, ठीक है। तो उसमें से वायर्स निकलती हैं और वायर्स कहाँ जाती हैं, मदरबोर्ड के अंदर, जो मदरबोर्ड को पावर देती है, ठीक है। अब एक और चीज बता रहा हूँ काम की, सब स्टूडेंट जरा गौर से सुने इस बात को। ये जो रेड कलर का मार्क दिख रहा है किसी को यहाँ पर, कैन यू सी द मार्क? यस सर। Yes, sir. यस सर। कभी पता है कोई आपने, डिड यू एवर ट्राई टू नो दैट कि व्हाट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ दिस मार्क? क्या होता है इसका मतलब? इसका क्या मतलब है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, सो वी यूज द पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स, ठीक है, 220 वोल्ट्स यूज करते हैं। बट इन यूरोप और इन अमेरिका वी यूज 110 वोल्ट्स, 110 वोल्ट्स यूज करते हैं, ओके। So there is an option in the power supply that if अगर ये पावर सप्लाई अमेरिका में यूज हो रही होगी, so that this red button can be switched to the 110 volts। ये इसके अंदर आप you can change the volts as well, आप इसकी चेंज कर सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द कंट्री। इफ पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के वोल्टेज लेवल्स हैं, एक हमारे पास लेवल है 220 लेवल और एक है हमारे पास 110 लेवल। तो अब जो कमर्शियल घरों में यूज होता है, तो जो घरों में यूज होता है पाकिस्तान में वो 220 है। तो 220 के हिसाब से क्लियर करो, right? So all these red things is basically it is recommended by the companies to do not touch it। आप इसको टच नहीं करें।
सर तो स्विच कैसे करेंगे, वो जो आप कह रहे हैं स्विच करना है, स्विच कैसे करेंगे? राइट नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने स्विच कर सकते हैं। आप इसके अंदर से जो है ना, आप उसके अगर आप पिन करेंगे ना, तो पिन से यू कैन मूव इट। ठीक है, इसको पिन करके प्रेस करेंगे, इट कैन बी मूव इजीली, बट मूव नहीं करना कभी भी। ओके ओके, अली अकबर प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड कैमरा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू and sit straight properly. यस अली अकबर, ये पावर सप्लाई क्या होती है बताया मैंने आपको? सर आपने अभी पावर सप्लाई बताया है कि ऐसे स्टेबलाइजर है सर, इससे हमारी मतलब कंप्यूटर की ज्यादा पावर होती है सर, इससे पावर बढ़ती है। अच्छा, मैंने ये वर्ड यूज किया कि इससे पावर बढ़ती है? नहीं सर, मैं मतलब मैंने तरीके से कह दिया। नहीं, मैंने जो कहा है वो बताइए। इस बटन का क्या काम है? इस बटन का क्या काम है? ये सर जो इस बटन सर ऑन और ऑफ होता है। क्या ऑन और ऑफ होता है? सर जैसे हम इसको हम प्लग पे लगाएंगे और सर इसके पीछे की लीड, आपने बताया इसके पीछे की लीड भी होती है जो कंप्यूटर से यहाँ उससे सीपीयू से कनेक्ट होती है, तो सर ये पावर मतलब थोड़ी सी पावर देता है, कंप्यूटर को थोड़ी हेल्प करता है ताकि वो पावर यूज ना करे। ओके, दुनिया में कितने वोल्टेज लेवल्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं? सर 330। 330? जी जॉन, 330 का यूज हो रहा है? नो सर, सर 110 हो रहा है और 220 हो रहा है सर। जी वानिया, कौन सही कह रहा है? अली अकबर सही कह रहे हैं या जॉन सही कह रहे हैं? सर जॉन। जी इरफा, अर्शिया, क्या क्या वानिया सही कह रही हैं? ये निम्रा, नाइमा, नाइमा ये सही कह रही हैं? नहीं सर 160 होता है। 160 होता है? अच्छा, जबरदस्त। यानी कि 330 के बाद एकदम से 160 आ गया। ओके, नाउ अलीशा। जी अलीशा जहरा बताइए। यस मासूमा, मासूमा बताइए। सॉरी मासूमा कह रहा हूँ, मूसा खुर्शीद, खुशनूद मूसा। सर मैं कह रहा हूँ कि 2 वोल्ट होते हैं दुनिया में, जी 110 और 220। ठीक है, अली अकबर अब आपको समझ में सही आया? बताया था ना मैंने। बिल्कुल जॉन, सही आपने बताया था ना। जी आपने बिल्कुल सही बताया। समझ में आया जॉन, अपना अली अकबर आपके सर क्या बताया अभी? कितने वोल्ट होते हैं? सर 110। और जी और 110 के अलावा भी होते हैं या सिर्फ 110 होते हैं? नहीं सर, मुझे 110 नहीं दिया सर, अगर था और सर और 220 होता है। जी 110 और 220। तो अली अकबर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें क्लास के ऊपर, ठीक है? जी सर। ये मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे जो है ना फिर बीच में दोबारा पूछूंगा, तो फिर आपको जो है ना पता होना चाहिए सारी चीजें। सर राइट। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप समझे कि लेटेस्ट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मैं कैशे मेमोरी, कौन किसी को पता है कैशे मेमोरी क्या होती है? सबने पढ़ा होगा कि मोबाइल के अंदर कैशे होती है, कंप्यूटर के अंदर कैशे होती है। ये कैशे होती क्या है, ये बताएंगे कोई? जी सर शायद ये मतलब हमारे फोन को खराब होने से शायद रोकता और ये मेमोरी भरने नहीं देता। ठीक है, और उसके बाद इरफा, इरफा, इरफा सही से बैठे। सर मैं जी आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैशे क्या होती है? पता नहीं क्या है इस प्लेस। जी अब बताएं, रीडिंग करने के बजाय अब बताएं।
जी इरफा, इफ्रा, सर ये बायोस चिप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैशे मेमोरी का। देखिए बायोस चिप का। अच्छा एक बात बताता हूँ, चलिए मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ओके। अगर लेट सपोज मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ और उस केस स्टडी में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल यह है कि मेरे पास घर की अलमारी में, घर के कबर्ड में, वार्डरोब में 2000 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात जॉन, इफ्रा? घर की अलमारी में 2000 रुपीज पड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे वॉलेट के अंदर 500 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं, और मेरे बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज रखे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे बैंक अकाउंट में कितने? 5000 रुपीज। मेरे घर वार्डरोब में कितने? 2000 रुपीज। और मेरे वॉलेट में कितने? 500 रुपीज। नाउ अब अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं किसी दुकान के ऊपर और मुझे कोई चीज परचेज करनी है 200 रुपीज की, तो मैं सबसे पहले पैसे कहां से निकालूंगा? अपनी वार्डरोब से निकालूंगा या वॉलेट से निकालूंगा? वॉलेट से। क्यों? उसकी वजह क्यों? क्योंकि अब सर आप जैसे कि दुकान पे सर आप दूर छोड़ना है अपने घर में, और सर और आपकी जेब में ही है, और सर आप ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? 500 के लिए सर आपको आप क्या 1000 रुपीज देंगे या फिर 200 के लिए? ठीक है ठीक है ठीक है, जो पूछ रहा हूँ उतना बताइए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि 200 रुपीज की अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मेरे वॉलेट में, अच्छा वॉलेट में मैंने इसलिए लिया क्योंकि वॉलेट में अपने पास इजीली कैरी कर सकता हूँ, ऐसा ही है, और वो छोटी सी जगह पे स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा क्या वॉलेट, अच्छा उस वॉलेट में एक बात सुनिए, उस वॉलेट में क्या मैं 1 लाख रुपीज रख सकता हूँ? नहीं सर, नहीं रख सकता। नो सर। क्या मैं वो 1 लाख रुपीज बैंक में रख सकता हूँ? आराम से यस सर। इसी तरह से कंप्यूटर की 3 तरह की मेमोरीज होती हैं। एक होती है कैशे मेमोरी। अब उस कैशे मेमोरी को आप वॉलेट समझे, ओके। रैम, अच्छा ठीक है, रैम वॉलेट समझिए, रैम को आप वार्डरोब समझिए, वार्डरोब यानी कि अलमारी समझिए, और जो हार्ड डिस्क होती है उसको आप बैंक समझें, ओके। नाउ अगर किसी प्रोसेस, अगर देखिए मैं प्रोसेसर हूं, ठीक है, और मैं प्रोसेसर हूं, मेरे पास कैशे मेमोरी है, वो कैशे मेमोरी क्या है? वॉलेट। अगर मैं कहूं वॉलेट है, इसी तरह से जो वार्डरोब है वो क्या है? रैम। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं वार्डरोब बैंक कहूं तो बैंक क्या कहलाएगा? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ओके। सर वो डेटा स्टोर करती है और वो कंप्यूटर को रन स्पीड बढ़ाने में बिल्कुल। अब आप ये समझे इस बात को ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं प्रोसेसर हूं तो मुझे अगर इंफॉर्मेशन फौरन चाहिए, मुझे फौरन इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैं अपने वॉलेट में देखूंगा, तो वो वॉलेट बेसिकली कैशे मेमोरी है। तो इसी तरह से जो अगर मेरे पास अगर मेरे पास वॉलेट में वो उतनी अमाउंट नहीं होगी या पैसे नहीं होंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर उसके बाद कहाँ जाऊंगा? वार्डरोब में देखूंगा, तो अलमारी में चेक करूंगा। अगर अलमारी में भी वो उतने अमाउंट नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? बैंक के अंदर। तो सिमिलरली अगर कोई इंस्ट्रक्शन, ओके, अगर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोसेसर को जो चाहिए वो कैशे में है तो वो कैशे से डायरेक्ट ले लेगा। इसी तरह से कैशे से अगर नहीं है तो वो सबसे फिर वो कहाँ जाएगा? रैम के अंदर। और अगर रैम में भी वो चीज नहीं है तो इट विल गो टू द हार्ड ड्राइव। तो कैशे जो है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी है। उससे बड़ी मेमोरी जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? रैम। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है? हार्ड ड्राइव। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, गुड।
नाउ अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ मेरे पास 2 वॉलेट्स हों, ओके, 2 वॉलेट्स हों, एक वॉलेट में 200 हो और एक वॉलेट में 500 हो, और दोनों वॉलेट मेरी जेब में हो, तो इज इट गुड फॉर मी और इज इट बैड फॉर मी? सर बैड फॉर यू। नो, मेरे पास एक ही वॉलेट में सर आप पूरे पैसे रखें। नहीं, अगर एक वॉलेट की कैपेसिटी है ही 200 की, अगर उसमें सिर्फ 200 आ सकते हैं, एक वॉलेट में सिर्फ 200 आ सकते हैं और दूसरे वॉलेट पे 500 आ सकते हैं, और मैंने दोनों वॉलेट अपनी जेब में रख लिए, तो मैं क्या आसानी से 700 की चीजें मार्केट से खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता? नहीं सर। यस सर। यस सर खरीद सकते हैं। खरीद सकता हूँ। तो इसी तरह से यस सर। कंप्यूटर के अंदर भी कैशे मेमोरी की बहुत सारी चिप्स होती हैं, ठीक है। तो जनरली कंप्यूटर में 3 चिप्स होती हैं, जिसे कहते हैं L1, L2 एंड L3, यानी कि एक प्रोसेसर के पास 3 वॉलेट्स हैं, हर वॉलेट की अपनी कैपेसिटी, यानी कि एक वॉलेट के अंदर 200 रुपीज आ सकते हैं, दूसरे में 400, तीसरे में 600। तो यू कैन हैव 3 वॉलेट्स एट अ सेम टाइम। तो इसे कहते हैं L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, students, are you getting my point? यस सर। यस सर। ये हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपसे पूछूंगा क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्योंकि यू कैन रीड द लेक्चर एज वेल, ठीक है, आप लेक्चर्स को रीड आउट भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस, कैन यू सी द डायग्राम? नहीं सर। ये ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही नहीं है? सर। यस सर। ओके, ये देखिए, अब देखिए सीपीयू के बिल्कुल सबसे करीब तरीन कौन सी कैशे है? L1 कैशे, सबसे करीब कैशी सर, क्या कहते हैं कैशी? कैशे, ठीक है, कैशे। L1 कैशे। अच्छा देखिए, इसका बॉक्स जो है वो छोटा बना हुआ है, कैन यू सी दिस? सर इसकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है। जो L2 कैशे है, इसका बॉक्स बड़ा है, इसका मतलब है ये काफी इससे बड़ी कैशे है। जी सर। और जो L3 कैशे है वो इससे बड़ी कैशे है, जी सर। ठीक है। तो अब ये जस्ट लाइक दैट कि इस सीपीयू के पास इट हैज गॉट 3 डिफरेंट वॉलेट्स, ये 3 वॉलेट्स हैं, एक छोटा वॉलेट है, एक दूसरा उससे बड़ा वॉलेट है, तीसरा वॉलेट है। ये तीनों वॉलेट्स जो है वो एक प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। अब उससे सबसे बड़ा जो पूरा एक वार्डरोब है, अलमारी है, या आप कबर्ड कह लीजिए, वो है मेन मेमोरी। नाउ दैट मेन मेमोरी इज एट द होम। अगर आपके पास इन तीनों चीजों में, इन तीनों वॉलेट्स के अंदर कुछ नहीं होगा, अगर वो उतनी रिक्वायर अमाउंट नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? यू विल गो एंड फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द मेन मेमोरी, ओके। एंड व्हाट इज द मेन मेमोरी? मेन मेमोरी बेसिकली इट्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड वी विल डिस्कस रैम इन द लेटर, ओके। ये लेटर हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा एक बात बताइए, यस, एनी क्वेश्चंस? लास्ट 2 मिनट्स, अगर कोई क्वेश्चंस है, मेरा लेक्चर यहाँ पे फिनिश हो गया। यस Sir, did you mark my attendance? यस, किसी की अटेंडेंस? माय अटेंडेंस? किस, क्या नाम है आपका? उनसिया। सर मेरी भी अटेंडेंस नहीं लगी। मेरा नाम है लैलमा। 7C उनसिया। उनसिया जी, हो गए सर मार्क। मजाक कर रही हैं, इनका नाम लैलमा नहीं है, अंजुम नफीस है। लैलमा है। सर मेरा भी कर देना। क्या नाम है आपका? मिस लैलमा। तो सर लैलमा हमारे क्लास में तो नहीं है। जी सर। सर लैलमा इज नॉट इन आवर क्लास। जी आपका नाम? सर लैलमा हमारे क्लास में नहीं आ जाती है। अंजुम नफीस खोल ले, यहाँ से लैलमा अंजुम नफीस। आज अभी तो आपका ही था ना, अभी क्लास एंड नहीं हुई, अभी आपका ही था, उसके बाद आपका होगा। नाइमा आप 7th A में हैं बेटा? नहीं। आपका नाम 7th A में आ रहा है। ओके, मैं तो 7th
है, आपका नाम 7th A में आ रहा है। मैंने आपकी मार्क कर दिया अटेंडेंस आज की। मेरी गलती नहीं हुई मेरी मार्क्स का अटेंडेंस नाइमा असवर आपका मैंने कर दिया है, ठीक है। नाइमा कौन सी नाइमा? जी नाइमा आपकी प्रेजेंट लगा दी मैंने। सर मेरी लगा दी। जी जी सबकी लगा दी है भाई। क्या वो जो प्रेजेंट है सबकी लगा दी ना? जो एब्सेंट है उनकी भी लगा दूं? नहीं तो फिर अच्छा, सबने अपना गूगल क्लासरूम के ऊपर लेक्चर सॉरी ये जो अब लेक्चर है मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर अब सर वो आ ही नहीं रहा, कल वाला भी नहीं आया था सर। आ गया था। जी सर क्लासरूम में गूगल क्लासरूम में होमवर्क से नहीं आ रहा है क्लासरूम पे ही है। ये खिजर अब्बास आप आए। ओके क्लास, इट्स द क्लास इज यस एनी क्वेश्चंस? Sir, I have submitted you the first homework. ओके आई विल सी इट, थैंक यू। Okay, sir. ओके सर, ये बताइए I have सब also सब ये submitted. बताइए कि कोई क्वेश्चन कोई सबको क्लियर हुआ? कैशे मेमोरी एंड पावर सप्लाई एंड CMOS एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड? जी सर। गुड। ओके, मैं ये वीडियो लेक्चर जो है क्या कहते हैं इसका लिंक जो है गूगल क्लासरूम पर रखूंगा, व्हाट्सएप पे नहीं रखूंगा, तो काइंडली वहां से आप लोग यू कैन सी द क्लास जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। Sir, can you WhatsApp पे भी डाल ओके देना। recording ओके on the group? यस आई विल सेंड इट ऑन द गूगल क्लासरूम। ओके क्लास, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.